discuss a new chapter of mathematics. So chapter number 2. So the name of this chapter is system of real numbers, exponents and radicals. So we have another chapter which is named system of real number and exponent and radical. So in this chapter we will discuss the theoretical concept and then one by one exercise and their problems we will solve. First of all, there is introduction class in which I want to clear the theoretical concept regarding this chapter, and then one by one I will solve the problems from each exercise. This chapter contains 8 exercises on which our first lecture is on introduction, and after introduction I will solve one by one the main questions of these exercises. So let's start. Here we have properties, Caloyer property, very basic property of mathematics in which you have to only multiply or add the numbers. It means a plus b is equal to c. It means you will get here is equal to c. A plus b is equal to c means 2 plus 3 you will get 5. So this one is c. This is very basic Caloyer property in system of real number. And then we have commutative property on which you have take two numbers on which 3 plus 4 is equal to 4 plus 3. You will get same answer on both sides. So and then third one we have associative property, which is a plus b plus c is equal to a plus b plus c, in which simply you will take the numbers a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 3, and then you will solve, and both sides you will get same answer. This is your left hand side and this is your right hand side. So for both left hand side and right hand side you will get same answer. So and then we have inverse property, and this property is very interesting. It means that if you have 5, this one is positive number. So what is the inverse of this one? So for inverse you have to add or subtract a number, so you get minus. Okay, so in this which number we will add or subtract, so to get 0? We have 5, so 8 minus 5 we will get 0. Inverse means you have in inverse we have multiplication and addition. Addition in inverse and multiplication in inverse, so you have to simply change the signs of given number. Here I take 5, so what you have done, minus 5. If I take 6, then you will minus 6. If I take minus 7, then you will add 7. So you will get your answer. And then we have identity property. So identity property is very easy. We have two identity properties, which are in multiplication and addition. So for multiplication we have one is identity property, and for addition we have multiplicative identity we have 1, and addition we have 0. So let's see here. So a number 1 plus 0, so you will get 1 plus 0 or 0 plus 1, you will get 1. Okay, और सेम अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता सेम मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में मीन्स जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो 2 में मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे रिजल्ट में 2 ही मिले, तो हम क्या कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी विल गेट फाइनल 2. So it means that we have multiplicative property is 1, and for addition we have 0. So and then first of all I put here one number properties, and now we will move forward for second. So second we have
terminating decimal fraction on which we have, and then recurring decimal fraction, and then pi and under radical 2. So let's start the tutorial concept on that. So second we have terminating decimal fraction on which we have decimal part contain finite number, means finite मीन्स के डेसिमल पार्ट यहाँ पर क्या है कि कोई भी आपको नंबर मिले, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट रेशनल और इरेशनल नंबर का भी आता है। जो पी अपन की फॉर्म है वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है, और सही है। और इसको हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 25.01। और सिंपली है, अब देखें डिवीजन के लिए सिंपली है, अगर यहाँ पर आपको देखें 2 0 गिवन थे, ठीक है, तो आपने क्या किया कि सिंपली ये सेम डिजिट आप लिखें, ठीक है। और ये जो है सपोज करें आपकी पॉइंट यहाँ है, अगर आपके पास 2 zeros हैं तो आप जो है 1 डिजिट 2 डिजिट मीन्स कि आपकी पॉइंट यहाँ आएगी 25.01। अगर आपके पास 3514 होता और डिवाइड होता 100 के साथ तो आप क्या करते 35.14, ठीक है। और ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, इसमें आ जाती है रेशनल नंबर में। उसके बाद हम बात करते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, डेसिमल पार्ट कंटेन इनफिनाइट नंबर। यहाँ पर हमारे पास है इनफिनाइट, यहाँ पर फिनाइट था और यहाँ पर इनफिनाइट है, मतलब कि हमारे पास जो फॉर्म है वो इनफिनाइट में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है 1/3 जो कि हमें देता है आंसर 0.33, ठीक है, मतलब कि ये जो है कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो है हमारा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, सही है। उसके बाद ये मैंने 1/6 लिखा है, इसका आंसर भी आपको क्या मिल रहा है 0.166, ये भी चलता जा रहा है। सो हमारे पास ये हो गया रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर सिस्टम पार्ट्स। तो उसके बाद ये देखें, ये जो एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, यहाँ पर मैंने आपको रेशनल के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, और इसमें एक सवाल आता है कि पाई क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पाई जो हमारे पास है उसकी वैल्यू जो है वो इनफिनाइट नंबर्स तक चली जाती है, 3.14159 अप टू मीन्स के सम नंबर्स, ये नंबर वैल्यू जो है चलती जा रही है। तो हमारे पास हम क्या कहेंगे कि ये जो आती है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में, और जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो अगर आपसे सिंपली कोई पूछे कि पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप क्या कहोगे कि पाई जो है हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद यहाँ पर अंडर रैडिकल 2 है, सही है। सो ये हो गया 1.4142, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि अंडर रैडिकल हमारे पास 4 होता तो इसका आंसर क्या मिलता हमें 2। अगर 16 होता तो हमें क्या मिलता 4 मिलता, ठीक है। तो ये हमारे रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर का एक और कॉन्सेप्ट है कि इसको जो है 2 को हम रेशनल क्यों कह रहे हैं, 4 को हम रेशनल क्यों कह रहे हैं, पर जबकि रेशनल का ये P/Q फॉर्म में होने चाहिए, पर यहाँ पर P/Q फॉर्म दिख ही नहीं रहा है, तो हम इसको रेशनल नंबर कैसे कहेंगे। पर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि देखें ये हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पर अगर मैं 2/1 लिखूँ और इसको मैं कहूँ कि ये P है और इसको मैं कहूँ कि ये Q है, तो ये हो सकता है। और 2/1 = 2 ही आंसर आता है। इसका मकसद कि ये जो है हमारे पास इसको हम रेशनल नंबर में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आपके पास अंडर रैडिकल 2 है, उसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया इरेशनल नंबर। जैसे कि अंडर रैडिकल 3 है तो इसकी वैल्यू भी आपको जो है पॉइंट्स में मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आते हैं, जिसको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास था सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें हमने पढ़ा, और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के बारे में, और पाई का कॉन्सेप्ट भी दिया कि पाई क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सो पाई हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो मैट्रिक से लेकर हाई लेवल की मैथमेटिक्स से, जैसे कि फर्स्ट ईयर की है या आगे लेकर, सो पाई के बारे में ज़्यादा सी कन्फ्यूजन हो जाती है। पर सिंपली आप MCQs में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि ये जो है हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर है, सही। सो आगे चलते हैं हम। सो नाउ वी हैव
exponent. Our topic is exponent. So the general formula for exponent is a power n. So a is any number and n is the power of number. सही है. So यहाँ पर मैंने जो a है वो 3 लिया है और जो पावर है वो 2 है. इट मीन्स कि एक्सपोनेंट सिंपली मकसद क्या है कि वो जो सेम नंबर है वो कितने टाइम जो है अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे कि यहाँ पर 3 पावर 2 है, इसका मकसद है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स के 3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वी विल गेट 9. सही है. यहाँ पर 5 पावर 2 5 पावर 3 कुछ भी हो सकता है. सही है. यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने. जैसे कि यहाँ पर 2 पावर 6 है. ठीक है. सो हम क्या करेंगे 2 को जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2. ठीक है. जब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 64. सही है. उसके बाद हमारे पास है एक एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5. ठीक है. अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन. ठीक है. सॉल्यूशन यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ पहले 2 लिखना है. ठीक है. 2 आपने लिखा जो ये है. ठीक है. ये सेम एज इट एंड देन वी सॉल्व दिस वन. 3 मल्टीप्लाई है 5 टाइम्स. सही है. सो हमने क्या किया 1 2 3 4 5. ठीक है. इसको जो है हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया. सो हमें क्या आंसर मिला 243. ठीक है. 243. और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 243 को 2 के साथ तो आप क्या आपको आंसर कौन सा मिलेगा, दिस वन 486. सही है. उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है. अगर आपके पास जो वैल्यू है वो माइनस में हो और पावर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. जैसे कि -5 है, इसके ऊपर जो पावर है वो 2 है. सो हम क्या करेंगे -2 या -5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू +25. यहाँ पर देखें ये माइनस है. ठीक है. माइनस है और ये भी माइनस है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन आ गई. सो वी विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट. सही है. यहाँ पर एक और एग्जांपल है -3 पावर 3. सो अब देखें 1 टाइम सेकेंड टाइम. अब देखें माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस. सो हमें क्या मिला रिजल्ट में प्लस. वंस अगेन मल्टीप्लाई बाय माइनस हमें क्या मिलेगा माइनस. सही है. अब देखें ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. अब देखें अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव में हो और पावर पॉजिटिव हो. ठीक है. 2 हो चाहे 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो कितना भी बड़ा पावर हो, अगर वो जो है पॉजिटिव है इवन नंबर में तो आपको जो आंसर है वो भी आपको इवन नंबर में मिलेगा. और उसके बाद देखें अगर आपके पास ये है नेगेटिव में है. ठीक है. और उसके ऊपर जो वैल्यू है वो भी आपका ऑड नंबर है तो हमें क्या मिलेगा, आंसर है वो नेगेटिव में मिलेगा. जैसे कि यहाँ देखें -3 और -3 मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, जैसे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल हमें क्या मिला प्लस. ठीक है. प्लस मिला. वंस अगेन ये. ठीक है. ये हमने मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ हमें क्या मिला माइनस. सही है. तो इसका कॉन्सेप्ट ये यहाँ पर है. उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा एक so now we have law of exponent on which we will discuss law of exponent. यहाँ पर हमारे पास कुछ laws हैं. ठीक है. यहाँ पर देखें जैसे कि a पावर m a पावर n. ठीक है. यहाँ पर मतलब कि आपका जो है ये जो a है इसको हम कहेंगे बेस और ये है हमारा पावर और एक्सपोनेंट. ठीक है. सो मकसद के यहाँ पर देखें जैसे कि 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 5. जब यहाँ पर आपके पास बेस सेम हो तो आप क्या करोगे, सिंपली बेस सेम लिखोगे और उसके ऊपर जो पावर्स हैं वो आप ऐड करोगे. 5 + 3 8. ठीक है. और उसके लिए जो है ये हमारे पास फार्मूला है a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n. सिंपली इनके जो पावर है वो हमें ऐड करने हैं. उसके बाद सेकंड हमारे पास है जैसे ये सेम है माइनस का है हमारे पास तो भी आप क्या करोगे सेम ही लिखोगे, बस इसके जो पावर है वो ऐड करोगे. 5 + 4 = 9. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर -3 था तो हमारे पास ये भी -3 है और इसके जो पावर है वो 9 है. ठीक है. यहाँ पर देखें 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5. ठीक है. तो इसका पावर 2 है और इसका पावर 5 है. 2 + 5 = 7. सही है. उसके बाद
मतलब कि आपके पास कोई भी यहाँ पर 4/3 हो, ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 3 हो, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आपके पास पावर 6 हो और इसके ऊपर अगर आपके पास पावर 10 हो तो आपके पास हो जाएगा 4/3 16, ठीक है। आपको ये आंसर मिलेगा। यहाँ पर आप देखें अंडरटिकल 3 और इसके ऊपर जो पावर है वो 2 है, सेम मल्टीप्लाई है अंडरटिकल 3, मीन्स के आपका जो बेस है वो एक ही है, सेम ही है, इसके पावर सिर्फ 8 होंगे। तो सेम हमने लिखा 2 + 4 = 6 है। उसके बाद यहाँ देखें a मल्टीप्लाई बाय b पावर 5, तो अगर इसका हम देखें जनरल तो हमें क्या a मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स के ये जो है 5 टाइम है, a मल्टीप्लाई बाय b ये आपस में जो है मल्टीप्लाई है। सही है। यहाँ पर बीच में अगर आप मल्टीप्लिकेशन की साइन दें तो भी सही है, ना दें तो भी सही है, क्योंकि जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ना ये आपस में मल्टीप्लिकेशन होते हैं। यहाँ पर इसे आप लगाओ तो भी सही है, नहीं लगाओ तो भी सही है, सही है। तो इसको अगर हम जनरल लिखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए है वो आप अलग कर लें, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, सही है। उसके बाद हमारे पास b है, अब ये a के आप अलग करो, b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b 1 2 3 4 b, सही है। मीन्स के हमारे पास जो 5a है और 5b है, ठीक है। और अगर इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, a पावर 5 मल्टीप्लाई b पावर 5, ठीक है। मकसद कि ये हमारा था एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट, और एक्सपोनेंट के जो भी लास्ट थे वो हमने यहाँ पर ये था हमारे पास एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर जो भी लास्ट थे एक्सपोनेंट के वो हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर देखें a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n, ठीक है। मतलब कि अगर आपका बेस सेम है, यहाँ पर टोटल 3 डिजिट्स हैं, सही है, 3 नंबर्स हैं 1 2 3, ठीक है। कितने भी नंबर हो सकते हैं, 1000 में, ठीक है, 100 में, टेंस में, यूनिट्स में, ठीक है। सिंपली अगर आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, बेस को लिखोगे और उनके पावर सब ऐड करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है m + n + p, सही है। तो ये सारे कुछ लास्ट थे, कुछ कॉन्सेप्ट थे एक्सपोनेंट के ऊपर। सो 1.1 और 1.2 ये दोनों हमारे यहाँ पर ख़त्म होती हैं, क्योंकि 1.1 और 1.2 इसी में सेम सारी थ्योरेटिकल चीज़ें थी, और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल थे वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। एक्सपोनेंट के ऊपर काम था, यहाँ पर आपको सिर्फ बेस बताना है या एक्सपोनेंट पावर वो दिखाना है, इनको जनरली शो करना है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास 1.1 और 1.2 की कहानी ख़त्म होती है, और अगली लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे 1.3, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।